Hello and welcome. Last class में we did the Bahmani kingdom and today we are going to read about the Vijayanagar kingdom. The kingdom of Vijayanagar came into existence almost simultaneously with that of the Bahmanids in the south. It was founded by two brothers Harihar and Bukka Rai who were probably kinsmen and revenue officials of Pratap Rudradev II, the Kakatiya ruler of Warangal. When the kingdom of Warangal was overrun by the Tughlaqs, they shifted to Anegondi or Kampili and entered into the service of its local Hindu chieftain. Anegondi also fell into the hands of Turkish army after some time and two brothers were taken captives to Delhi. They were subsequently released by Sultan Muhammad bin Tughlaq and allowed to return to south as the imperial agents of Delhi. They, however, turned freedom fighters who championed the cause of liberation of south from the Turkish domination. In 1336, with the assistance and blessing of the celebrated sage Vidyaranya of Sringeri, they found a new habitat at a strategic location surrounded by hills and forest on the banks of Tungabhadra river as a place of protection against the sudden onslaught of Turkish invaders. It was named Vijayanagar. तो क्या कहा जा रहा है कि विजयनगर किंगडम जो है वो एग्जिस्टेंस में आई ऑलमोस्ट उसी समय में जब बहामनी किंगडम एग्जिस्टेंस में आई। विजयनगर किंगडम के फाउंडर दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रताप रुद्र देव II, जो काकतिया रूलर थे वारंगल के, उनके सर्विस में हुआ करते थे। जब वारंगल पर तुगलक्स ने अटैक कर दिया तो ये लोग जो है कंपिली चले गए और कंपिली के लोकल हिंदू चीफ्टन के सर्विस में काम करने लगे। लेकिन उसी समय कंपिली पर भी टर्किश आर्मी ने जो है अटैक कर दिया और इस वजह से दोनों भाई को जो है बंदी बना करके दिल्ली ले जाया गया। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इनको छोड़ दिया, एक इम्पीरियल एजेंट बना करके दिल्ली का वापस से साउथ भेजा। वहाँ दिल्ली में जो है इन्होंने इस्लाम भी एक्सेप्ट कर लिया था और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के ये लोग सर्विस में चले गए थे, उनके सैनिक बन गए थे। लेकिन फिर जब वापस साउथ ये लोग आए इम्पीरियल आर्मी के एजेंट्स बन के, तो क्या हुआ कि एक संत थे जिनका नाम विद्यारण्य था, वो श्रृंगेरी में रहते थे। तो उन्होंने जो है इनको समझाया और वापस से हिंदुइज़्म में कन्वर्ट किया और इन दोनों ने फिर क्या किया, फिर ये इम्पीरियल एजेंट्स नहीं बन के इन्होंने जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में तुंगभद्रा नदी के किनारे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए एक जगह में क्या किया, एक नया किंगडम स्टैब्लिश किया जहाँ पर टर्किश इन्वेडर्स जो है वो अचानक से अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि इट वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड। इस नए किंगडम का नाम विजयनगर था। हरिहर became its first ruler and on his death in 1356 was succeeded by Bukka Rai who also enjoyed a long reign of 21 years. As a matter of expediency, the two brothers did not assume royal titles and preferred to be known as the leaders of popular Hindu reaction against the Muslim dominations of the south. During their lifetime, Vijayanagar developed into a vast kingdom which extended from Tungabhadra valley in the north to the tip of peninsula along eastern coast. Muslim principality of Madura, which had come into coexistence in 1355-56, was conquered and annexed to Vijayanagar kingdom by Bukka Rai towards the close of his reign. The establishment of Bahmani kingdom at Gulbarg checked the advancement of Vijayanagar towards the north. As narrated earlier, the Bahmani kingdom and Vijayanagar entered into conflict with each other for political dominance of the south, and their mutual rivalry ruined them in the long run. The rulers of Vijayanagar championed the cause of Hinduism, albeit they adopted liberal and tolerant attitudes towards their non-Hindu subjects. हरिहर जो है वो विजयनगर के पहले रूलर बने
जिन्होंने लगभग 20 साल तक रूल किया, फ्रॉम 1336 टू 56। और इसके बाद जो है बुक्का राय जो है वो विजयनगर के दूसरे रूलर बने, जिन्होंने लगभग 21 साल तक रूल किया, 56 से 77 तक। और फिर दोनों भाइयों ने जो है कोई रॉयल टाइटल अज्यूम नहीं किया, और ये जो है हिंदुओं के जो है जनरल लीडर बनना चाहते थे, क्योंकि साउथ में जो मुस्लिम डोमिनेशंस हो रहा था उसको उसको एज अ रिएक्शन ऑफ दोज मुस्लिम डोमिनेशन ये किंगडम्स ग्रो कर पाई थी। विजयनगर एक बहुत ही बड़ी किंगडम थी और उनके लाइफ टाइम में जो है ये काफ़ी फ्लरिश करी। इसका जो है एक्सटेंशन था तुंगभद्रा इन द नॉर्थ टू द टिप ऑफ द पेनिनसुला अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट से तो एकदम एंड ऑफ द पेनिनसुला तक ये लोग जाते थे, और तुंगभद्रा से शुरू हो करके यहाँ तक। मुस्लिम प्रिंसिपैलिटी जो मदुरा की थी वो जो है 1355 से 56 के टाइम पर जो है इसको जो है बुक्का राय ने कॉन्कर कर लिया था, विजयनगर में मिला लिया था। बहामनी किंगडम जो गुलबर्ग में थी उसके साथ जो है विजयनगर का भिड़ंत होते रहा, जो हमने बहामनी में भी पढ़ा। और दोनों एक दूसरे से पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए साउथ में दोनों के बीच में राइवलरी थी। विजयनगर के रूलर जो है वो हिंदुइज्म के कॉज के लिए लड़ रहे थे, बट उनकी जो नॉन हिंदू सब्जेक्ट थी उन्होंने उनके साथ भी लिबरल और टॉलरेंट एटीट्यूड रखा हुआ था। Kingdom of Vijayanagar lasted 230 years and produced 3 ruling dynasties. Ruling house founded by Harihar and Bukka Rai came to be known as the Sangam dynasty after their father Sangam. Harihar II, the third ruler of the dynasty, assumed imperial titles of Maharaja Dhiraj, Raja Parmeshwar. He consolidated his position into a well-administered kingdom and extended his dominance by the conquest of Kannur, Mysore, Trichinopoly, and Kanchi. He waged an intermittent war with the Bahmanids for the possession of Raichur Dwap, situated between Krishna and Tungabhadra rivers, which formed a bone of contention between the two kingdoms. He also invaded Ceylon and obtained tribute from its rulers. The Vijayanagar kingdom exercised control over a number of seaports, the flourishing centers of maritime trade. So विजयनगर किंगडम जो है वो लगभग 230 साल तक चली, और इसने 3 रूलिंग डायनेस्टीज़ को प्रोड्यूस किया, मतलब 3 अलग अलग वंशों ने विजयनगर पर अपना शासन किया। सबसे पहला रूलिंग हाउस जो हरिहर और बुक्का ने क्रिएट किया था, सबसे पहला वंश जो हरिहर और बुक्का राय ने बनाया था, उसका नाम था संगम वंश, और वो उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर रखा था। हरिहर II जो बुक्का राय के बाद आते हैं, वो इस डायनेस्टी के, संगम डायनेस्टी के तीसरे रूलर थे, और उन्होंने इम्पीरियल टाइटल जैसे कि महाराजा धीराज, राजा परमेश्वर, ये सब लिया। उन्होंने अपने पोजेशंस को स्ट्रॉन्ग किया और कंसोलिडेट किया, और अपने एम्पायर में कन्नर, मैसूर, ट्रिचिनोपोली, कांची ये सब ऐड किया। बहामनिड्स के साथ भी उनकी जो भिड़ंत हुई एक्चुअली रायचूर द्वीप को कैप्चर करने के लिए, जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के बीच में सिचुएटेड थी। और रायचूर द्वीप जो है एक्चुअली में बोन ऑफ कंटेंशन बनी दोनों किंगडम के बीच में। इन्होंने हरिहर II ने साइलॉन को भी जो है इन्वेड किया और साइलॉन के रूलर्स से ट्रिब्यूट भी लिया। विजयनगर किंगडम जो है उसके पास बहुत सारे सी पोर्ट्स हुआ करते थे, जिस वजह से उसका जो है सी ट्रेड या मैरीटाइम ट्रेड जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर पाया। देन कम्स अनदर रूलर देवराय II. Devarai II was one of the greatest monarchs of Sangam dynasty, who overhauled the civil and military organization of the state and waged many successful wars against his rival Niccolo Conti and Abdur Razak. The two foreign adventurers visited the kingdom of Vijayanagar during his reign. His successors proved to be weak, whose period the power of state was usurped by their noble. Virupaksh II, the last ruler of the Sangam dynasty, was deposed and later assassinated by his all-powerful commander-in-chief
Saluv Narasimha in 1485, which led to the foundation of Saluva dynasty. सो देवराय टू जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर रहे संगम डायनेस्टी के। इन्होंने सिविल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया स्टेट में और सक्सेसफुली अपने राइवल्स को जो है वॉर में हराया। निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रज़ाक दो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने विजयनगर को देवराय टू के समय विजिट किया। देवराय टू के जो सक्सेसर्स हैं वो वीक रहे और उनसे उनका पावर जो है नोबेल्स ने छीन लिया। जैसा हर डायनेस्टी में होता है कि अगर राजा वीक होता है तो नोबेल्स पावरफुल हो जाते हैं। विरूपाक्ष टू जो है ये लास्ट रूलर थे संगम वंश के और इनके जो नोबेल थे सलुव नरसिम्हा जो कि इनके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, उन्होंने जो है विरूपाक्ष टू को मार दिया और सारा का सारा पावर जो है वो यूजर्प करके सलुव वंश का निर्माण किया 1485 में। The Saluv dynasty lasted 2 decades only, from 1485 to 1505. Narsimha, the founder, was a capable ruler who recovered most of the territories which had been annexed to the Bahmani sultans and the Hindu rulers of Odisha during the reign of weak successors of Devrai II. Narsimha was succeeded on the throne of Vijayanagar by his two sons in quick succession, both of whom were incompetent rulers. It provided an opportunity to Veer Narsimha, the next commander-in-chief of Vijayanagar, to usurp the throne in 1505. He laid the foundation of what is called as Tuluv dynasty. तो सलुव डायनेस्टी जो नरसिम्हा ने स्टैब्लिश किया वो बस 20 साल तक टिक पाई 1485 से 1505 तक। नरसिम्हा जो है वो एक केपेबल रूलर थे और जो भी एरियाज जो देवराय टू के वीक सक्सेसर्स ने लूज़ कर दिया था बहामनी किंगडम को या फिर उड़ीसा के हिंदू रूलर्स ने जो छीन लिया था वो सारा एरिया जो है ये वापस से विजयनगर में इन्होंने मिला लिया। नरसिम्हा जो है उनको जो है विजयनगर किंगडम में के थ्रोन पर उनके बेटों ने सक्सीड किया। उनके दोनों बेटे जो है वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट थे और फिर से जो है हिस्ट्री रिपीट हुई। जैसा नरसिम्हा ने अपने राजा के साथ किया था वीरपक्ष टू के साथ, वैसा सेम काम नरसिम्हा के बेटों के साथ जो है नरसिम्हा के दूसरे बेटे के साथ जो है वीर नरसिम्हा जो कि उनके कमांडर इन चीफ थे उन्होंने किया। मतलब उन्होंने जो है नरसिम्हा के दूसरे बेटे को हटा करके थ्रोन से उन्होंने खुद आ गए थ्रोन पर और एक नई डायनेस्टी उन्होंने ऑल टुगेदर स्टैब्लिश कर दी जिसको कहते हैं तुलुव डायनेस्टी। Veer Narasimha, who ascended the throne by treacherously murdering the reigning monarch Imadi Narasimha, aroused resentment and opposition from many grandees of the state. His authority was defied by some of the provincial governors and feudatory chiefs. The internal revolts prompted the Bahmanids and other neighbors to encroach upon the territory of Vijayanagar. Veer Narasimha had therefore to engage himself in an endless war against his internal enemies and foreign invaders during the short period of his rule. On his death, Veer Narasimha was succeeded by his half-brother Krishnadev Raya, who was by far the greatest monarch of Vijayanagar. He suppressed the internal revolts with iron hand and restored law and order within his dominance. He humbled the pride of Gajapati Prataprudra, king of Odisha, in a number of well-contested actions. The latter was compelled to give his daughter in marriage to Victor and surrender all the territories over which Vijayanagar had ever exercised any influence or claim. Krishnadev Raya invaded and conquered the Raichur Doab and defeated Sultan Adil Shah of Bijapur in 1520. The victorious Hindu army put the Vijapur territory to loot and plunder. The historic fort of Gulbarg was sacked and demolished. This revengeful and unbecoming conduct of Vijayanagar troop was deeply resented by Muslim rulers of the Deccan. The 5 successors of erstwhile Bahmani kingdom, Krishnadev Rai had friendly relations with the Portuguese who made their settlements along the western seacoast. Albuquerque, the Portuguese governor of Goa, sent a diplomatic trade mission to Vijayanagar in 1510 and secured many concessions from its monarch.
Krishnadev Raya was an excellent administrator, scholar, patron of art and learning. He promoted Sanskrit as well as Telugu literature. He utilized the resources of the state for the happiness and welfare of his subject and adopted a policy of religious toleration towards them. He was loved and admired by his subject for his noble qualities of head and heart, the territorial jurisdiction, military prowess, prestige, and prosperity of Vijayanagar reached the apex of his glory during the reign of Krishnadev Raya. वीर नरसिम्हा ने लास्ट रूलर इमाडी नरसिम्हा को जो है वो धोखे से मार के थ्रोन पर आए थे और तुलु वंश की स्थापना की थी। इसलिए वीर नरसिम्हा को जो है वीर नरसिम्हा के खिलाफ जो है वो बहुत ऑपोजिशन था स्टेट में। बहुत सारे नोबल्स ये चीज़ें पसंद नहीं कर रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स उनकी अथॉरिटी नहीं मान रहे थे, फ्यूडिटरी चीफ्स उनकी बातें नहीं मान रहे थे। तो वीर नरसिम्हा ने पूरी ज़िंदगी जो है इंटरनल रिवोल्ट्स और एक्सटर्नल अग्रेशन को शांत करने में ही लगा दिया। जब वीर नरसिम्हा की डेथ हुई तो उनके मरने के बाद वीर नरसिम्हा के सौतेले भाई कृष्णदेव राय जो है वो थ्रोन पर आए। और कृष्णदेव राय जो है वो बस तुलुव डायनेस्टी के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विजयनगर किंगडम के सबसे बेहतरीन राजा माने जाते हैं। उन्होंने इंटरनल रिवोल्ट्स को बड़े ही सख्ती से ख़त्म किया और लॉ एंड ऑर्डर वापस से मेंटेन किया। उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्र को जो है उन्होंने जो है बहुत सारे बैटल्स में हराया और जितनी भी चीज़ें थी जिस पर कभी भी विजयनगर का क्लेम था जो उड़ीसा ने ले लिया था वो सब वापस लिया। प्रताप रुद्र ने जो है अपनी बेटी से इनकी शादी भी करवा दी। कृष्णदेव राय जो है उन्होंने रायचूर द्वीप पर भी कब्जा किया सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर को हरा करके। और जो विक्टोरियस हिंदू आर्मी थी उन्होंने जो है बीजापुर में बहुत ही लूट खसोट मचाया और बीजापुर का जो हिस्टोरिक फोर्ट था, बीजापुर का जो किला था गुलबर्ग का, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो है वो 5 मुस्लिम रूलर्स जो डेक्कन में थे, जो बहमनी किंगडम के अंदर आते थे, जिसके बारे में हमने कल ही बात किया, तो उन्होंने जो है इस कंडक्ट का बदला लेने की कोशिश बहुत बार की। कृष्णदेव राय जो है उनके पोर्टुगीज़ के साथ अच्छे गहरे संबंध थे और पोर्टुगीज़ जो है वो वेस्टर्न सी कोस्ट में बसा करते थे। अल्बुकर्क जो पोर्टुगीज़ गवर्नर हुआ करते थे गोवा के, उन्होंने जो है विजयनगर में एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजा था और विजयनगर के मोनार्क से बहुत सारे कंसेशंस लिए थे। कृष्णदेव राय एक एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, स्कॉलर थे, आर्ट और लर्निंग को प्रमोट किया इन्होंने, संस्कृत लैंग्वेज और तेलुगु लिटरेचर को प्रमोट किया। इन्होंने जो है स्टेट की जो रिसोर्सेस है उसको अपनी जनता की भलाई के लिए, जनता की खुशी के लिए यूज़ किया और ये रिलीजियसली टॉलरेंट थे, मतलब नॉन हिंदू के साथ भी ये टॉलरेंट थे। इनको जो है जनता प्यार करती थी, एडमायर करती थी इनके नोबल क्वालिटीज़ के लिए। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मिलिट्री प्रोवेस, प्रेस्टीज और प्रॉस्पेरिटी जो है विजयनगर की अपनी चरम सीमा पर थी जब कृष्णदेव राय वहाँ पर रूल कर रहे थे। सक्सेसर्स ऑफ कृष्णदेव राय आर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर्स। Sadasiv, the last ruler of the dynasty, was a puppet in the hands of Brahmin Prime Minister Ram Rai, who was an able but arrogant man, extremely ambitious and tactless. He began to interfere in the mutual quarrels of the Muslim rulers of the Deccan in vain hope of reviving the prestige of Vijayanagar. For a while, he made them fight with one another. Ram Rai displayed religious fanaticism and vandalism during his military expeditions into Muslim dominance and thus incurred the indignation of Muslim population of the south as a whole. Accordingly, the Sultan of Ahmednagar, Bijapur, Golconda and Bidar formed a confederacy and launched a joint attack on Vijayanagar. The mighty army of Vijayanagar encountered these enemies at the battlefield of Talikota and received a crushing defeat at their hands on the January 25, 1565. The whole of the army was destroyed. Ram Rai was captured and beheaded, and his royal cap was sacked and yielded incalculable treasure, arms, horses, and much beside. A couple of days later, the victorious army entered an unguarded town of Vijayanagar with their mind full of vengeance.
They sacked the town, murdered its inhabitants who fell into their hands, and demolished its magnificent buildings and temples. They stayed in the Tungbhadra valley for about 6 months and carried fire and sword in the countryside. कृष्णदेव राय के सक्सेसर्स जो हैं वो काफ़ी वीक और इनकॉम्पिटेंट थे। सदाशिव जो तुलुफ डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो एक कठपुतली बन के रह गए थे अपने प्राइम मिनिस्टर राम राय के हाथ में। राम राय एक एबल इंसान थे बट काफ़ी घमंडी थे। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे और बिन सोचे समझे जो है उन्होंने अपने मिशंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है बगल के बहामनी किंगडम के मुस्लिम रूलर्स के इंटरनल झगड़ों में इंटरफेयर कर दिया। हमने बाद में पढ़ा ना कि 5 अलग अलग रूलिंग हाउसेस बन गई थी बहामनी में, तो इन 5 अलग अलग रूलिंग हाउसेस के झगड़ों में ये इंटरफेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया। शुरू में तो वो लोग एक दूसरे किससे लड़ी, बाद में इनसे लड़ी। राम राय जो है वो कट्टर थे, धार्मिक कट्टरता थी इनमें, और नॉन हिंदूज़ के लिए जो है इनका जो है बहुत ही ख़राब व्यवहार रहा। जब ये मिलिट्री एक्सपीडिशन करते थे मुस्लिम डोमिनेंस में, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन होती थी उनके साथ बहुत ख़राब बिहेवियर होता था इनका, जिस वजह से साउथ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इनसे एंटागोनाइज हो गए। और उसके बाद फाइनली बहामनी किंगडम के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर चारों ने मिल कर के क्या किया, एक कॉन्फेडरेसी बना लिया और फिर उसके बाद जो है विजयनगर पर अटैक किया इन द बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि उसमें जो है उस विजयनगर को हरा दिया बहामनी की कॉन्फेडरेसी ने, क्योंकि बहामनी तो ख़त्म हो गया था एक्चुअली, ये सारे किंगडम्स ने मिल करके एक्चुअली हरा दिया। तो इसके बाद जो है उसके बाद राम राय को कैप्चर कर लिया गया और उनका सर कलम करवा दिया गया और फिर रॉयल आर्मी को पूरा लूटा गया, उनके आर्म्स, हॉर्सेस, ट्रेजर को पूरा लूट लिया गया। फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद जो है वो बहामनी की, या फिर कह लीजिए कि रॉयल कॉन्फेडरेसी की जो आर्मी है उसने क्या किया, वो जो है वो विजयनगर के टाउन में घुसी और उनके मन में सिर्फ बदला था कि हमारे साथ जो भी राम राय ने किया है सबका बदला लेना है। तो वो क्या किया, वो जो विजयनगर के टाउन में घुसी तो उन्होंने पूरा टाउन बर्बाद कर दिया, लोगों को मार दिया, मर्डर कर दिया, टेम्पल्स को बर्बाद कर दिया। और ये लगभग 6 महीने तक वो लोग जो है वो तुंगभद्रा वैली पर ही रहे। द ग्लोरी ऑफ विजयनगर केम टू अ वायलेंट एंड albeit the kingdom itself could not be wiped out of existence altogether. Sadasiv, the puppet ruler of Vijayanagar, had not taken part in the fateful battle of Talikota. He was deposed by Tirumal, a brother of the deceased Prime Minister Ram Rai, who set up his headquarters at Penugonda and declared himself the king of Vijayanagar. Gradually, he recovered a part of the kingdom and restored law and order there. His descendants continued to style themselves as kings of Vijayanagar until the total disintegration of their possession. तो क्या हुआ, विजयनगर का ग्लोरी जो है वो तो ख़त्म हो गया बैटल ऑफ तालीकोटा से, पर सदाशिव जो कि पपेट रूलर थे, जो कि तुलुफ डायनेस्टी के आखिरी रूलर भी हैं, इन्होंने जो है वो बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पर राम राय के जो भाई हैं, राम राय के भाई तिरुमल ने जो है वो सदाशिव को भगा दिया और जो थोड़ा बहुत जगह बचा था विजयनगर किंगडम का पेनुगोंडा में, तो वहाँ पर जो है राम राय ने क्या किया, खुद की सुपरमैसी को स्टैब्लिश कर लिया और फिर ग्रेजुअली जो है उन्होंने फिर से लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करके एक किंगडम बना लिया और वो खुद को जो है वो विजयनगर का ही रूलर मानते थे। और टोटल डिसइंटीग्रेशन विजयनगर की जो है 1614-15 में हुई। तब तक ये डायनेस्टी जो इन्होंने स्टैब्लिश की बाद में, काइंड ऑफ डायनेस्टी जो इन्होंने स्टैब्लिश की, तो ये जो है ये चलती रही। The monarch of Vijayanagar, like the Bahmanid, were typical central despots. The executive council comprised minister, provincial governor, military general, Brahmin priest and scholars, albeit all of them were nominees of the crown and held office at the pleasure of the latter. The function of the council were purely advisory in nature. The civil administration as well as army was organized were based on Hindu feudal system of the pre-Muslim days, which seems to have been faithfully preserved along with its manifold defects. The state during the heyday of the glory was divided roughly into 200 provinces, which for all intents and purposes were akin to the feudal estates, each under the charge of a noble. Important governorship
were held at by princes of the royal blood, their kinsmen, friends, and favorites. Governors enjoyed autonomous power in the internal administration. They recruited their own armies and rendered military service to the king when needed. They paid to the royal exchequer not the net proceeding of the revenue but a specified annual tribute. Many of the provincial units were actually ruled by hereditary feudal lords and princes. The provinces were divided into districts called Nadu or Kottam, each of which comprised a couple of parganas and some villages. The village panchayat administered their charge without much interference from the higher officials and helped in the maintenance of peace and tranquility in the countryside. The benevolent monarch constructed canals, dams, water reservoirs for irrigation and promotion of agriculture. A lucrative maritime trade with the countries of the Middle East brought rich revenues to the state. A brisk trade and commerce was carried out along the sea coast with the dominance. तो विजयनगर के जो राजा थे वो भी बहमनी के राजा की तरह ही ओरिएंटल डेस्पॉट्स थे, मतलब सारा रूल उनका चलता था, वो सर्वे सर्वा थे। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नर और मिलिट्री जनरल्स, ब्राह्मण्स हुआ करते थे जो पंडितों का काम करते थे, और स्कॉलर्स हुआ करते थे। पर ये लोग कौन थे? ये लोग वही लोग थे जिनको राजा ने खुद से नॉमिनेट किया था, और ये तभी तक रह पाते थे कोर्ट में जब तक राजा की इच्छा हो। तो ये काउंसिल जो है भले ही थी और इसकी फंक्शंस भी थे, बट ये काउंसिल जो है वो एडवाइजरी थी। इट कुड नॉट ओवर रूल द किंग। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है वो हिंदू फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड था, जो प्री मुस्लिम डेज में जैसा फॉलो होता था एग्जैक्टली वैसा। जब विजयनगर अपने मैक्सिमम पीक पर थी अपने डेवलपमेंट के, तो विजयनगर में लगभग 200 प्रोविंसेस थी, और ये प्रोविंसेस को जो है नोबेल्स के अंदर नोबेल्स जो है वो रूल किया करते थे। इम्पॉर्टेंट गवर्नरशिप जो है, इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस की गवर्नरशिप जो है वो प्रिंसेस को या रॉयल फैमिली के लोगों को मिलती थी, या प्रिंस या किंग के फ्रेंड या फेवरेट्स को। गवर्नर जो है उनको ऑटोनॉमस पावर था, वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अपना अपने हिसाब से करते थे। आर्मीज़ में खुद से लोगों को रिक्रूट करते थे। मिलिट्री सर्विस जब किंग को नीड होती थी तो वो देते थे। वो जो है रॉयल एक्सचेकर को एक स्पेसिफाइड अमाउंट देते थे। ऐसा नहीं कि जो भी कलेक्ट किया सब दे दिया, वो नहीं, एक स्पेसिफाइड एनुअल ट्रिब्यूट बस देना होता था। मैक्सिमम प्रोविंशियल यूनिट जो है वो हेरिडिटरी थी, है ना। तो मतलब हेरिडिटरी फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब फैमिली वाइज चल रही थी कि किसी के फादर की है कोई यूनिट तो उसके बेटे ही वो यूनिट संभालेंगे। प्रोविंसेस जो है उनको फर्दर जो है प्रोविंसेस जो है वो नाडू में डिवाइडेड थी। तो एम्पायर कैसे डिवाइडेड है? पूरा एम्पायर जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, और प्रोविंसेस फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है जिसको नाडू कह रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड है कोट्टम में। डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है परगाना में, मतलब आप ब्लॉक कह सकते हैं। तो नाडू या कोट्टम, फिर ब्लॉक जिसको कि परगाना कह रहे हैं, और ब्लॉक जो है वो विलेज में डिवाइडेड है। इवन विलेज पे भी, और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। विलेज पंचायत जो है वो विलेज का चार्ज संभाल रही है, और उनको हायर ऑफिशियल्स जो है इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं उनके मैटर में, और विलेज पंचायत जो है वो विलेज में पीस और ट्रैंक्विलिटी ला रही है। बेनेवोलेंट मोनार्क जो जनता से प्यार करते थे, प्रजा से प्यार करते थे, उन्होंने जो है कनाल्स, डैम्स, वाटर रिजर्वॉयर्स भी बनाया ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। और ट्रेड तो बहुत अच्छा था विजयनगर का, तो मैरीटाइम ट्रेड अच्छा था, इस वजह से मिडिल ईस्ट से जो है वो रिच रेवेन्यू भी आता था मिडिल ईस्ट के ट्रेड से। और इसके साथ साथ the rulers of Bahmani and Vijayanagar kingdom provided a long era of peace and prosperity to their subject in the southern peninsula when the inhabitants of Delhi had been suffering under the misrule of Lilliputian Sultan. तो बहमनी और विजयनगर के रूलर ने जो है साउथ में एक पीसफुल रूल दिया, जबकि नॉर्थ में जो है लिलीपुटियन सुल्तान, यानी कि बस नाम के सुल्तान के अंदर नॉर्थ जो है वो सफ़र कर रहा था। By this, the Vijayanagar kingdom has been read, and now we are going to read about the administration of Sultanate in the next video. Thank you so much for watching. Thank you.